Hello. Hi, good afternoon. This is Prasoon this side. I hope that I am audible to all of you. Hi. Well, during the presentation, if anybody has a doubt or you want to say something, you can actually write that on your chat window. So, the reason that we are not allowing anybody else to speak is काफी ज़्यादा लोग अगर एक साथ बोलेंगे, so there will be a lot of confusion which will happen. So you can actually write your queries or whatever you want to say on the chat window. So I hope that you guys had seen the poster that was circulated for the webinar. किस-किसने देखा था वो poster? सत्यमेव जयते के उससे inspired था काफी कुछ. So I think some of you might have seen that poster, and yeah, it was there on the web. It was about how to increase work efficiency, and there was one question that was actually asked to all of you. That question was, ever wish the day was 2 hours longer? होता क्या है कि जब हम लोग डेली लाइफ्स में अपने जो भी काम कर रहे हैं, हमें एट टाइम्स ऐसा लगता है कि 2 घंटे ज्यादा होते या 4 घंटे ज्यादा होते तो शायद हमारे बहुत सारे काम ऐसे थे जो हम कर सकते थे. There would have been a lot of things which we would have been able to do if we had like 2 hours more in our daily work routine. But have you ever imagined कि मनमोहन सिंह जो कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास भी पूरे दिन में सिर्फ 24 आवर्स हैं. बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर थे और आजकल वो अपनी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज कर रहे हैं. बिल गेट्स विद हिज वाइफ इज नाउ इन्वॉल्व्ड इन लॉट ऑफ फिलैंथ्रोपी एंड सोशल चैरिटी वर्क्स. He also has 24 hours. Mark Zuckerberg has 24 hours. Kal it was the IPO of Facebook. Hi Arohi, you are welcome. It was the IPO of Facebook. Facebook went public, and Prerna, am I not audible? Facebook went public. Even Mark Zuckerberg had 24 hours during the past 8 years when he had founded Facebook, and till the date the Facebook went public. So, you know, he just had 8 hours multiplied by 365 days, multiplied by 24 hours. The calculation is very easy. 8 years into 365 days into 24 hours, which is like, you can do the calculation, you can do the mathematics on your side. So at the conclusion, we come to a conclusion that all of us as human beings only have 24 hours in a day, and in a year which has 365 days, we have number of hours which are equivalent to 365 into 24. That is all that we have with us. We move on with our today's webinar, which is basically how to increase work efficiency. आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि जब हम लोगों ने वेबिनार वर्ड यूज किया था, जब हम लोगों ने वेबिनार वर्ड को आप लोगों तक पहुंचाया था, not many people knew what exactly is a webinar. So we had to actually use the word online webinar to specify that it is a online session. So that was quite funny actually, which happened with us. Some people asked us कि सर हम तो आपके ऑफिस आ ही नहीं सकते, हम वेबिनार कैसे अटेंड करेंगे? So we just told them that it is an online thing. You can actually attend this session at your home. Moving forward, let us understand what is meant by being work efficient. वर्क एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? वर्क एफिशिएंट होने का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? कैन यू सी दिस इमेज? डोंट यू थिंक इट इज लाइक द मोस्ट वर्क एफिशिएंट थिंग यू हैव एवर सीन इन योर लाइफ? You can do a lot of stuff at the same time. Even you can have a commode and that can actually serve as a chair. So, this is one of the most work efficient picks or the most work efficient offices that you could have actually seen in your life. So, is it what we mean by being work efficient, that you put some commodes in your office, you put a commode in a school, in your college? You can actually have a commode which you can actually take to your colleges. मतलब आपका एक ऐसा पोर्टेबल टॉयलेट जो कि आप ऑफिस ले जा सकते हो, जो कि आप अपने स्कूल ले जा सकते हो, जो कि आप अपने कॉलेज ले जा सकते हो. तो उससे ज्यादा कन्वीनियंट और क्या हो सकता है? आप 8 बजे की क्लास में 8 में 2 कम पे उठे, you wake up like just 2 minutes to 8, you go to the college because you already have a portable toilet. So that is like the most work efficient thing you can actually ever imagine. But ऐसे inventions अभी तक शायद हुए नहीं है, या मुझे नहीं पता.
तो अगर ऐसे इन्वेंशंस होते हैं, अगर आपको पता चलता है, so do let me know because I am also eager to have something of this kind in my office. Moving further, why the heck we want to be work efficient? Why the heck work efficiency is required? हमें work efficient होना क्यों जरूरी है? Work efficient होने के लिए क्या reasons हैं? Work efficient होने से क्या फायदे हैं? जैसा कि आप सब जने जानते हैं, everyone loves free money. हम सबको एक्स्ट्रा पैसा बुरा नहीं लगता. घर आती लक्ष्मी किसको बुरी लगती है? घर आती लक्ष्मी के जो फायदे हैं वो गिनाना मेरे लिए शायद मुश्किल नहीं होगा, और आप सब भी जानते हैं कि what you can actually achieve by having extra money. So the most important benefit which you can actually derive when you have extra hours with you is you can work extra and you can have more and more free money with you. ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आ सकता है. वैसे मैं अपने वर्क को, अपने एफर्ट्स को पैसे से रिलेट नहीं करना चाहता, क्योंकि होता यह है कि जब आप हर चीज को अपने पैसे के साथ रिलेट करते हैं तो कई बार आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है. लेकिन आप और ये चीज पे बिलीव करेंगे दैट द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर एनीथिंग दैट यू डू इन दिस वर्ल्ड इज एक्चुअली मनी. ऑल ऑफ अस वांट टू बी रिच, whether you deny it or not, whether you accept it or not, all of us really want to be rich. हम सबको अमीर होना पसंद है. हम सबको उन बड़ी पार्टीज में जाना पसंद है जहां पर कैटरीना कैफ आती है. हम सबको लिमोजीन ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है. हम सबको दुनिया के सारे डेस्टिनेशंस जो कि हम टीवी पे देखते हैं, जिसमें शाहरुख खान और काजोल हाथों में हाथ डाल के घूमते हैं, उन डेस्टिनेशन पे जाना किसको पसंद नहीं है? Everyone of us wants to roam around the world. Everyone of us wants to buy everything in the world. So you know, money is required for that. So nobody hates money. All of us love money. And if we can get extra money, Rajat, I'll open the question round at the end of the complete webinar. So we can have the question round in the last 15 minutes of the webinar, so that all of you can ask questions. Okay? और one thing that we already know, अगर आपने अपना quality time spend किया, so that is proportional to the money, the extra money that you earn. You need to spend your time as quality time. आपने सुना होगा कि working smart is something which all of us in today's world believe in. What is required from all of us is not to just work hard, it's also to work smartly. And what is meant by working smart? It is like investing a quality time into your efforts. आपको अपने टाइम को मैक्सिमाइज करना पड़ता है, जिससे आपका टाइम जो 1 घंटा आप स्पेंड कर रहे हो या जो 2 घंटे आप स्पेंड कर रहे हो, वो आपके 4 घंटे या 6 घंटे के बराबर हो जाए. सो यू नीड टू हैव क्वालिटी टाइम विद यू, जिससे आप जितनी एक्स्ट्रा मस्ती करना चाहते हैं आपके पास उसके लिए भी टाइम हो. अगर आप लेट्स से यू वांट टू गो आउट एंड मीट लॉट ऑफ पीपल, you have time for that as well. So you need to have a lot of quality time invested into your work so that you have more and more extra money with you. But एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, हम लोगों को सबको लगता है कि we have quality time with us. We already spend a lot of quality time. But problem कहाँ आती है? But then I already spent quality time is something which all of us believe in. It's just that Mr. Reason, Mr. R, हम सबके पास एक मिस्टर आर होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं मिस्टर रीजन. मिस्टर रीजन बहुत टाइप के हो सकते हैं. हर आदमी के पास अपना एक यूनिक मिस्टर रीजन होता है. हर आदमी के पास एक बड़ा क्लोज फ्रेंड होता है जिसको आप मिस्टर आर कह सकते हैं. उस क्लोज फ्रेंड के टाइप्स में आपको बताता हूं. हैंगओवर हो गया सर, इसलिए ऑफिस नहीं आ पाया. मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ पाया. मेरा हाथ टूट गया था सर, इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया. आई टोटली फॉरगॉट कि आई हैड टू मीट यू. ट्रैफिक जाम में फंस गया यार, सॉरी लेट हो गया यार. डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था सर, मैं ऑफिस नहीं आ पाई. ट्रेन डिले हो गई सर, इसलिए नहीं आ पाया. मीटिंग में फंस गया था जान, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया. प्लीज मेरे से ब्रेकअप मत करो. सो देयर आर लाइक indefinite number of Mr. R's which all of us have. हमारे पास सबके पास एक मिस्टर आर होता है, एक से ज्यादा मिस्टर आर होते हैं, और उन मिस्टर आर्स को हम टाइम टू टाइम आगे कर देते हैं. हम उन मिस्टर आर्स को टाइम टू टाइम आगे करके उनके पीछे अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, अपने जो क्वालिटी टाइम है, उसको हम लोग छुपाने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई टू हाइड बिहाइंड द मिस्टर आर टू स्पेंड आवर क्वालिटी टाइम और टू इन्वेस्ट आवर क्वालिटी टाइम. अब मिस्टर आर किस किस टाइप के हो सकते हैं, लेट्स सी. इतने लेम रीजंस आते हैं कई बार. रीजंस आर एज लेम एज
I'd be more productive if I had a chair. अगर मेरे पास एक चेयर होती तो I would have been more productive. And they are even labor. कई बार लोग एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, कहते हैं आई वांट टू हैव अ कॉफी, आई वांट टू हैव रेड बुल, उसके बिना मेरे से काम नहीं होता. सब दीज आर लाइक ऑल मिस्टर आर्स. हम लोगों के पास कई तरह के मिस्टर आर होते हैं एंड उनके टाइप्स इतने वियर्ड हो सकते हैं दैट समटाइम्स यू इवन अप्रिशिएट द पर्सन फॉर द काइंड ऑफ मिस्टर आर ही हैज बीन एबल टू कम अप विद. समटाइम्स दे आर सो इनोवेटिव, सो क्रिएटिव दैट यू कैन नॉट इवन वंडर कि उससे अच्छा कुछ हो सकता है इस वर्ल्ड के अंदर. But then if we say that these are just reasons, then how do we achieve greater work efficiency? हमारे पास अभी भी एक क्वेश्चन जो रहता है, एक क्वेश्चन जो अभी भी हमारे सामने है. The one question that we have not been able to answer is, then how do we achieve the greater work efficiency? If we have understood what is work efficiency, if we have been able to see the reasons behind having not good work efficiency, then how do we actually achieve a greater work efficiency? That question is something that we need to answer. So, you know, अगर आप कभी बिजनेस प्लान के बारे में सुना आप लोगों ने, जो कंपनीज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये लोग जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या जब इन लोगों को अपने मार्केट से पैसा रेज करना होता है या फिर इनको किसी को ये बताना होता है कि इनका बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, तो ये लोग एक बिजनेस प्लान बनाते हैं. एक वो प्लान जिसके अंदर वो सारी स्ट्रेटजीज लिखी होती हैं, वो सारी चीजें लिखी होती हैं जो बेसिकली ये लोग अगले 1 साल तक, अगले 2 साल तक या अगले 3 साल तक करेंगे या अगले 10 साल तक करेंगे, जिसकी हेल्प से ये जो टारगेटेड अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज है, जो इनके टारगेट्स हैं, उनको अचीव कर पाएंगे. और उसके पीछे वो सारी चीजें, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या स्वॉट एनालिसिस है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है, दे हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ बिजनेस प्लान. Similarly, we have a learning plan. We have a learning plan to improve the efficiency of the time that we invest in. To improve the work efficiency, we have to create a learning plan. The question now is, how do we create a learning plan? Well, it's quite easy. I would ask you to have a pen and paper with you for the next few slides. हम लोग आपको ये presentation भेज भी देंगे, but I would request you that if you can have a pen and paper with you, it will be more effective for you and you will be able to effectively utilize your time. The next few slides are only and only based on a few tips which will help you to make your own learning plan. So I hope that all of you have already brought with you the pen and paper. So let's start with the preparation of our own learning plan. You know, we have a very limited time for this webinar, so I am running up pretty fast, but we would be very happy to answer all the queries and any individual problems that you face when you are preparing your own learning plan after attending this webinar. So आप लोग अपनी problems हमें भेज सकते हैं, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कि exactly कैसे करना चाहिए. But since we have a very limited time in this presentation right now, so I'll kind of be pretty fast during my next few slides. So सबसे important चीज, जो first चीज आपको करनी पड़ेगी कोई भी learning plan बनाने के लिए, वो ये होगी कि आपको define करना पड़ेगा कि आपके goals क्या हैं. आपके अगले 2 से 3 महीने के वो कौन से goals हैं जिसको आप इस learning plan के through fulfill करना चाहते हो, या ऐसे कौन से goals हैं जिनको आप अगले 2-3 महीने में एक ऐसा प्लान बनाएं जिससे वो गोल्स अचीव हो जाएं. जब मैं छोटा था, मैं ऐसा बहुत लोगों को बताता भी हूं, इनफैक्ट मेरा खुद का एम्बिशन था, आई वांटेड टू गो इन स्पेस. आई यूज्ड टू वॉच दैट टेलीविजन शो व्हिच यूज्ड टू कम ऑन द सोनी टेलीविजन. उसका नाम था आई ड्रीम ऑफ जीनी. आई ड्रीम ऑफ जीनी से मैं इतना फैसिनेट होता था कि आई वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट एंड गो इन स्पेस. When I came into 10th standard, जब मैं 10th standard में आया तो मुझे लोगों ने बताया कि आपको स्पेस में जाने के लिए एस्ट्रोनॉट बनना पड़ता है और उसके लिए आपको इंजीनियर बनना पड़ता है. So the people asked me to prepare for IIT.
अब जब मैं आईआईटी के अंदर चला गया, मैं आईआईटी के अंदर घुस गया, तब मुझे पता चला कि आईआईटी के अंदर द फर्स्ट थिंग इज दैट यू डू नॉट चूज योर ब्रांच, द ब्रांच चूजेज यू. द रैंक दैट यू हैव इन योर आईआईटी जेईई एग्जाम इज समथिंग दैट will only help you to decide your branch. You are not allowed to choose any branch that you like. I was a bit disappointed. You know, I never wanted to be a civil engineer. I wanted to go in space since I was like a kid. But then some people told me that you still have an option. I asked the people, what is that option? I read in newspapers that there are a lot of people who have started going into space by actually paying for that seat which would take them into the space. But paying for that seat requires a lot of money. So I understood that I need to be very rich. I need to have a lot of money with me to go in space. So I decided to become an entrepreneur. मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने ये सोचा कि मैं जिंदगी में कुछ ऐसे काम करूंगा जिसकी हेल्प से मैं सबसे पहली चीज ये कर पाऊंगा कि मैं अपने एम्बिशन को पूरा कर पाऊंगा, और उसके बाद मैं ऐसे कुछ अच्छे काम करूंगा जिसकी हेल्प से whenever I go in space, the people watch me going in space and they really cheer my journey to the space. So currently I still have that ambition, I still have that desire of my life to go in space. But that's a long desire, that's a dream. That's going to happen around 20 years down the line. I don't know when is it going to happen. अगर मार्क ज़करबर्ग होता मैं तो शायद मैं 8 साल के अंदर स्पेस में जा सकता था, लेकिन आई एम नॉट मार्क ज़करबर्ग, आई एम नॉट बिल गेट्स. सो आई नीड टू रियलाइज दैट इट विल टेक मी टाइम टू गो इन स्पेस. बिफोर दैट मुझे अपने कुछ छोटे छोटे गोल्स को डिफाइन करना पड़ेगा. तो मुझे अपने अगले 2-3 महीने के गोल्स को इस तरह डिफाइन करना पड़ेगा कि वो मेरे लॉन्ग टर्म ड्रीम के साथ अलाइन है. मुझे अगर आज के 20 साल बाद स्पेस में जाना है और उसके लिए मुझे आज पैसे कमाने हैं, तो मुझे अपनी जिंदगी ऐसे ही प्लान करनी पड़ेगी कि 20 साल बाद मैं स्पेस में जा सकूं. और उसके लिए मुझे हर मोमेंट पे अपने लर्निंग प्लान्स को बनाना पड़ेगा जिससे मेरा टाइम में इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकूं. तो उस पेपर पे जो तुमने अपने हाथ में अभी लिया है, बड़ा बड़ा अपना एक ऐसा ड्रीम लिख दो जो तुम लाइफ में अचीव करना चाहते हो. जैसे मैं चाहता था स्पेस में जाना, और उसके नीचे उस ड्रीम के रिलेवेंट अगले 2-3 महीने में तुम ऐसा क्या करना चाहते हो जो बेसिकली तुम अचीव करोगे तो तुम्हारे ड्रीम की जर्नी में वो एक बड़ा डेस्टिनेशन होगा. उस गोल को लिख दो, बड़ा क्लियरली लिख दो कि वो गोल है क्या. वंस यू हैव रिटन दैट, आपको जो नेक्स्ट स्टेप लेना होगा वो आपको ये आई अंडरस्टैंड दैट दिस इमेज इज डिस्क्राइबिंग द फ्लो चार्ट इन विच योर गोल कैन बी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज. आपको जो सेकंड काम करना होगा वो आपको ये करना होगा कि आपको अपने लर्निंग गोल का, जो आपका गोल है अगले 2-3 महीने का, उसकी चीर फाड़ करनी होगी, उसका पोस्टमार्टम करना होगा. तो आपको वो सारी एक्टिविटीज लिखनी पड़ेंगी इस पेपर पे. मैं आपको इस चीज के लिए अभी नहीं बोलूंगा बिकॉज इट विल टेक यू टाइम टू राइट डाउन दीज एक्टिविटीज. बट इस पेपर पे, उस पेन से आप वो सारी एक्टिविटीज लिखिएगा जो बेसिकली आपको उस गोल को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड है. और अगर वो एक्टिविटीज आप पूरी करते हैं तो आपके अगले 2-3 महीने के गोल्स पूरे हो सकते हैं. आपको पता होना चाहिए कि वो सारी एक्टिविटीज क्या है. सो जस्ट राइट देम डाउन ऑन दिस पीस ऑफ पेपर. नेक्स्ट स्टेप, अगर आप लोगों ने एक किताब है, ब्रायन ट्रेसी नाम के ऑथर हैं, ब्रायन ट्रेसी. अगर आप लोगों को उस किताब में इंटरेस्ट है तो यू कैन आस्क अस, यू कैन रिक्वेस्ट अस, वी विल सेंड यू दैट बुक. इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, इट्स अ वेरी चीप बुक. इनफैक्ट काफी सस्ती बुक है और बहुत ही कम पेजेस की बुक है. तो हम लोग उस बुक को मुश्किल से 2 से 3 घंटे में पढ़ के खत्म कर सकते हैं. उस बुक के अंदर ब्रायन ट्रेसी ने एक इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट किया है, विच इज लाइक गेट मोर ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स डन टुडे. आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करके उनको खत्म करना पड़ेगा. और जितनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी उसका जो शेप होगा, उसका जो लुक होगा, वो उतना ही गंदा होगा. आपको वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप उसको गौर से देखोगे तो वो बहुत ही डिफिकल्ट एक्टिविटी लगेगी. आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही मतलब ऐसी गंदी एक्टिविटी है जो मैं देख भी नहीं सकता. मतलब इट्स अ वेरी हाईली इम्प्रोबेबल थिंग दैट आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग. बट देन आपको उन्हीं एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करके, आपको जितनी भी आपने एक्टिविटीज लिखी हैं उसके अंदर टॉप 20% एक्टिविटीज को जो आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं उनको पेपर पे लिखना होगा और बाकी सारी एक्टिविटीज को आपको कट डाउन कर देना होगा.
आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करने हैं कि अगर आपने 100 एक्टिविटीज लिखी हैं अपने गोल पे पहुंचने के लिए, तो उसमें से टॉप 20% एक्टिविटीज को, जो कि टॉप 20% प्रायोरिटी एक्टिविटीज हैं, उनको आपको अलग कर देना है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग जब अपनी बात करते हैं, वी एज ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग इंसान जब अपने बारे में बात करते हैं तो हमें इंसेंटिव्स बहुत पसंद होते हैं। हमारे पास हर मोमेंट पे एक ऐसा इंसेंटिव होना चाहिए जिसको बेसिकली जो अगर हमारे सामने हमें दिखेगा तो उससे हम लोग बड़े मोटिवेट होंगे। We need to incentivize everything that we desire to do. We need to have certain incentives. We need to have a carrot with us that can actually motivate us to work for that activity. हमें हर एक्टिविटी के लिए एक relevant incentive वहां पर लिखना होगा। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, दिस इमेज इज बेसिकली ऑफ बैरक ओबामा। बैरक ओबामा इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड बैरक ओबामा इज सपोजिटली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द प्लैनेट। लेकिन सबसे इन्फ्लुएंशियल और सबसे पावरफुल आदमी के पास भी कुछ ना कुछ पेन पॉइंट्स होते हैं। उसके पास भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बेसिकली अगर वो हटा सकता है अपने रास्ते से, अगर वो प्रॉब्लम्स, वो हर्डल्स वो अपने रास्ते से हटा सकता है, तो उसके लिए उस गोल को रीच करना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि वो हर्डल्स हैं क्या। तो आपको एक जो आपने पीस ऑफ पेपर लिया है उस पर 2 कॉलम बनाने होंगे। कॉलम की एक साइड आपको वो सारे हर्डल्स लिखने पड़ेंगे जो हर्डल्स बेसिकली आपको लगता है कि आपको उन एक्टिविटीज को अचीव करने में आ सकते हैं। सो ऑन वन साइड ऑफ योर पेपर, ऑन वन साइड ऑफ योर शीट, ऑन वन साइड ऑफ योर कॉलम, you need to write all those hurdles that you think that you would be facing while doing these activities. जब आप उन हर्डल्स को लिख लोगे, आपको कॉलम की दूसरे साइड, जो आपने एक कॉलम बनाया है, आपने कॉलम के वन साइड आपने हर्डल्स लिखे, कॉलम के दूसरे साइड हर हर्डल के लिए आपको एक सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। कि लेट्स से अगर मेरे सामने, मैं सुबह नहीं उठ सकता जल्दी, I cannot wake up early in the morning, and that is the biggest hurdle that I have in achieving my goal. Then you have to write the solution down on the right hand side of the column against that hurdle. So write the solution of every hurdle in front of that hurdle on that piece of paper. Now, अब हम आते हैं एक्चुअल लर्निंग प्लान पे। दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको कहा जाता है 21 डेज थ्योरी, 21 दिनों की थ्योरी। दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वानों का ये मानना है, मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल पीपल इन द वर्ल्ड बिलीव दैट whatever you can do continuously for the next 21 days, if you can actually do that thing for the next 21 days, it becomes a habit, it becomes your habit. So आपको एक शीट बनानी पड़ेगी, आपको एक नॉर्मल सी एक्सेल शीट बनानी होगी जिसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपको वो कौन कौन सी चीजें करनी है, आपको वो कौन कौन से काम करने हैं, और उन काम को आप किस तरह करोगे और दिन के किस टाइम करोगे। जैसे अगर आप सुबह 6 से लेकर 6:30 बजे तक कोई एक एक्टिविटी को देना चाहते हैं, तो आपको एक डिसिप्लिन वे में उस एक्टिविटी के सामने लिखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप सारी चीजें अचीव कर लोगे, मैं ये नहीं कहता कि ये चीजें whatever I am trying to tell you is so practical. Lot of the things have been stretched, but आप एक चीज जरूर बिलीव करोगे कि अगर आपने अपना लर्निंग प्लान 100% के हिसाब से बनाया और अगर आपने उसमें से 25% भी अचीव किया, तो आपकी एफिशिएंसी काफी हायर हो सकती है। So we need to strive for 100% so that we are able to land up at 25% at least. So आपको हर एक्टिविटी के आगे एक डिसिप्लिन वे में लिखना पड़ेगा कि मैं रोज इतना टाइम उस एक्टिविटी पे स्पेंड करूंगा या करूंगी। और अगर इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट के अंदर कोई भी दिक्कत आती है, सो हमारा जो ब्लॉग है techbuddyconsulting.blogspot.com, आप उस पर जाकर गॉड एंड हिज लॉ ऑफ 5 नाम का एक ब्लॉग है जो मैंने खुद ने लिखा था। यू कैन एक्चुअली गो एंड रीड दैट ब्लॉग, इट विल हेल्प यू अ लॉट into understanding how we can actually manage our time. हम लोग अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया ये ब्लॉग से लग सकता है। सो इस ब्लॉग का जो आईडी है वो आप नोट कर सकते हैं, और अगर आपको टाइम लग रहा है आईडी नोट करने में, तो यू कैन जस्ट विजिट techbuddyconsulting.blogspot.com एंड वहां पर जाके आपको बेसिकली ये जो ब्लॉग मिलेगा, गॉड एंड हिज लॉ ऑफ 5, यू कैन गो एंड रीड दैट ब्लॉग, एंड आई वुड लव टू हैव अ फ्यू कमेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आपको उस ब्लॉग को पढ़ने के बाद कुछ फायदा हुआ क्या। Did that blog really make a sense for you? I would love to hear your feedbacks on that.
नाउ यू हैव टू डू द वर्क। अब कुछ नहीं बचा आपके सामने, आपने सारी प्लानिंग कर ली, इतनी छोटी मोटी प्लानिंग थी और कुछ भी नहीं था हमारे सामने, और वो सारी प्लानिंग हम लोगों ने कर ली। वी आर ओवर विद क्रिएशन ऑफ द लर्निंग प्लान। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डू द वर्क। वी हैव टू एग्जीक्यूट आवर लर्निंग प्लान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज एग्जीक्यूशन। आप बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लेते हो, जैसे हमारे हिंदुस्तान में जो हम लोग देखते हैं, प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है लेकिन एग्जीक्यूशन बड़ा पुअर होता है। तो अगर आपने लर्निंग प्लान बना लिया और लर्निंग प्लान के अंदर गोल्स डिफाइन कर भी लिए, लेकिन अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे तो आप कभी भी वो चीजें नहीं हासिल कर पाओगे जो आप हासिल करना चाहते हो। एग्जीक्यूशन इज द की। एग्जीक्यूशन होल्ड्स द की फॉर एवरी सक्सेस इन योर लाइफ। अब जब आप एग्जीक्यूशन करते हो तो आपको जो आपने पीस ऑफ पेपर पे अपना लर्निंग प्लान लिखा है, उस लर्निंग प्लान को आपको टाइम टू टाइम हर 2 या 3 दिन में आपको उसको ऑडिट करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि उस लर्निंग प्लान के अंदर आपने क्या हासिल किया और आप कौन कौन से बेसिकली अचीवमेंट्स कर पाए और आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो ऑन अ स्केल ऑफ 5, एक्सीलेंट, वेरी गुड, एवरेज, पुअर, जस्ट रेट ईच एन एक्टिविटी ऑन अ डेली बेसिस। जो आपने एक्टिविटीज लिखी हैं, जो टॉप 20% एक्टिविटीज आपने लिखी थी, उन सब के आगे डेली बेसिस पे आप एक चार्ट बना लो 21 दिनों का, और उसमें हर दिन ये लिख दो कि उस एक्टिविटी में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। वॉज इट एक्सीलेंट, वॉज इट वेरी गुड, वॉज इट जस्ट गुड, और वॉज इट एवरेज, और वॉज इट वेरी पुअर। सो अगर आप ये लिख लेंगे तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपने खुद के लिए आप अपने खुद के लिए किस जगह पे स्टैंड करते हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखनी पड़ेगी, when you are executing your learning plan and then you are doing a feedback analysis of all the activities which you have listed down to achieve your goals, at every moment after a few days you have to list down your achievements. आपको अपने अचीवमेंट्स को लिस्ट डाउन करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा आपको सब जगह लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। आप कुछ भी कर सकते हो, आप फेसबुक पे डाल दो, आप अपने फ्रेंड्स को बता दो, आप हमें एसएमएस कर दो कि आई हैव अचीव्ड दिस थिंग। जितने ज्यादा लोगों को आप अपने अचीवमेंट्स बता पाओगे, आपको अंदर से एक खुशी का एहसास होगा। साइंटिफिकली एक प्रूवन फैक्ट है कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन होता है। एंडोर्फिन, ENDORPHIN। ये जो एंडोर्फिन हार्मोन होता है, ये बेसिकली आपके अंदर तब रिलीज होता है जब आपको किसी खुशी का एहसास होता है। सो जब आप अपने अचीवमेंट्स लोगों को बताओगे और जब वो आपकी तारीफ करेंगे, तब आपके अंदर से एक छोटा सा खुशी का आभास होगा, और जब वो आभास होगा तो आपके अंदर एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम होता है एंडोर्फिन। एंड व्हेन यू हैव दिस एंडोर्फिन इनसाइड योर बॉडी, यू गेट दैट सेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन दैट विल हेल्प यू टू वर्क फर्दर। आपको ज्यादा से ज्यादा वर्क करने के लिए अंदर से मोटिवेशन मिलना स्टार्ट होगा। तो आपको अपने अचीवमेंट्स को कुछ दिनों के बाद लिस्ट डाउन करना जरूरी होता है, और उसको आपको सबको बताना बहुत जरूरी है। अब ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। ये सोचने से, जिस आदमी ने ये सोचा कि उसके बारे में, उसके काम के बारे में लोग क्या सोचेंगे, वो कभी भी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाया। सो वी कैन नॉट एवर कीप दैट थिंग इन माइंड दैट व्हाट वुड बी द पीपल थिंकिंग। वी ऑलवेज हैव टू अज्यूम दैट हमें अपने अचीवमेंट्स को लोगों को बताना पड़ेगा और हमें उससे सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपनी सक्सेस को हर दिन और हर रात सेलिब्रेट करना होगा। आप हमें यू कैन इनवाइट इवन आवर टीम टू सेलिब्रेट योर सक्सेस। आप हमारे यहाँ पर आकर सक्सेस सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप जिन लोगों को सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिन लोगों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनके साथ अपनी सक्सेस को हर रोज, हर रात, हर दिन सेलिब्रेट करिए। उल्लू की तरह सेलिब्रेट करिए, इंसान की तरह सेलिब्रेट करिए, हर तरह से अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करिए। जब आप सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं तभी उस सक्सेस की इंपॉर्टेंस होती है और तभी उस लर्निंग प्लान का फायदा होता है। एंड फॉर यू एट दिस मोमेंट द सक्सेस वुड बी टू क्रिएट योर ओन लर्निंग प्लान एंड टू मैक्सिमाइज योर टाइम, मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ दिस लर्निंग प्लान। और एक चीज मैं आपको, एक जो प्रॉमिस मैं आपको दे सकता हूं, वो प्रॉमिस मैं आपको ये दे सकता हूं कि अगर आपने सोच लिया कि आप ये लर्निंग प्लान बना सकते हैं, आप अपने वर्क एफिशिएंसी पे इस तरीके से काम कर सकते हैं, तो एक प्रॉमिस मेरा आप आज लिख के ले लीजिए कि कुछ दिनों बाद आपको ये सब चीजें बड़ी आसान लगना स्टार्ट हो जाएंगी, ये सब चीजें बड़ी ऑटोमेटिक हो जाएंगी आपके अंदर,
एंड डेफिनेटली उससे आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी एफिशिएंसी पे काफी फर्क पड़ेगा। और अगर जिस एज ग्रुप में आप लोग आज हैं, you guys must be 20, 21 years of age, 19 years of age. So just imagine कि अगर इस एज में आपके अंदर एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, so at the age of 25 इस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज का जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो कितना ज्यादा होगा। हर साल आप अपनी प्रोडक्टिविटी को एक फैक्टर से बढ़ाते रहेंगे, तो जब आप 25 इयर्स के होंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी हाई हो सकती है। तो यू नीड टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड देयर इज नो टुमारो, इट्स ऑल इन वर्ड्स। टुमारो शब्द सिर्फ और सिर्फ शब्दों में होता है, क्योंकि टुमारो इज अ मिस्टिकल लैंड वेयर 99% ऑफ ऑल ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन एंड अचीवमेंट इज स्टोर्ड। टुमारो वो दुनिया है, वो एक दुनिया है जो एक जस्ट ड्रीम्स के अंदर होती है, जहां पर हमारी सारी प्रोडक्टिविटी, सारा मोटिवेशन और सारा अचीवमेंट स्टोर होता है। तो आपको टुमारो के बारे में नहीं सोचना, आपको टुडे के बारे में सोचना है। वेल, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द वेबिनार। हम लोग वेबिनार के एंड में आ रहे हैं। बिफोर वी ओपन द क्वेश्चन सेशन, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जैसे आप लोग सत्यमेव जयते देखते होंगे, तो उसमें आमिर खान जो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, हर बार एक क्वेश्चन पुट अप करता है। क्या कभी आपने अपने से भी कोई क्वेश्चन पूछने की कोशिश की? अगर आपने कभी अपने से कोई क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है, तो हमें ये बिलीव है दैट यू वुड लिव अप टू योर प्रॉमिस ऑफ इंप्रूविंग योर लर्निंग फॉर अ बेटर वर्क एफिशिएंसी एंड अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। और अगर आप ये प्रॉमिस कर सकते हैं, इफ यू प्रॉमिस दिस थिंग टू योरसेल्फ, तो सिर्फ एक यस टाइप करके इस एसएमएस को, जैसे आमिर खान एसएमएस जो आते हैं उनका जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो एयरटेल की तरफ से एनजीओस को डोनेट करते हैं। हमें इस यस से कोई रेवेन्यू नहीं हो रहा, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल नंबर on which you will send this SMS. You will be charged whatever rates your service provider would be charging you. लेकिन अगर ये प्रॉमिस आज आप कर देते हैं हमें यस भेज के, तो आपको एक कंप्लायंस हो जाएगा, आपको एक प्रॉमिस हो जाएगा कि हाँ आपको ये लर्निंग प्लान क्रिएट करना है। So just do this promise to yourself and do this promise to all the people who are around you. And before we open this session for the questions, one last thing. Spend more time at workspace and less time at productivity seminars. And step 2, get back to work. इससे पहले कि हम सेमिनार को खत्म करेंगे, मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि ये सारे सेमिनार सुन के कोई फायदा नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना होगा, और वो काम करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। इन सेमिनार्स को, इन वेबिनार्स को अटेंड करके कोई फायदा नहीं होगा, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो एक्स्ट्रा टाइम आप निकाल सकते हैं, उसके अंदर आप अगर ऐसी इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं जो आज आप इस वेबिनार में अटेंड कर पाए, so definitely you should be attending a few more of these sessions in future to improve other skills within yourself. So I open the webinar, the session for any questions, and you can write your questions on the chat window. You can write your questions on the chat window. Any questions that you have, any one of you? If you guys have any questions, you can write on the chat window, or thank you, Prerna. Do you have any question? Okay. Anybody else who has any question? Before you leave the webinar, I have now the one last slide for you. Thank you for your questions. If you don't have any questions, we can actually proceed further and conclude this webinar. And I seriously wish that you guys, okay, Rajat has a question. Sir, sometimes I become confused. Can you be more elaborative? Can you be more specific? Rajat, can you be more specific? Why do you become confused? When do you feel that you have become confused?
Okay, you feel that you can't take steps which help you. Okay, you think that you are afraid of taking steps. Well, Rajat, you are not afraid. You know, the reason that you are attending this webinar is the first conclusion that you are not afraid. मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि you are fearful of improving your own skills या फिर you don't want to take steps to improve your learning. The only reason which probably I could understand why you are afraid of taking steps is you have never shared your achievements with people, even as small as they are. I mean, छोटे छोटे अचीवमेंट्स को भी अगर तुम लोगों के साथ शेयर करके उनको सेलिब्रेट कर सकते हो तो जो खुशी अंदर से मिलती है, मैंने अभी एक हार्मोन की बात की जिसको हम एंडोर्फिन कहते हैं, तुम बिलीव नहीं कर सकते इतना मैजिकल हार्मोन होता है ये, इतना मैजिकल हार्मोन होता है दैट द कंप्लीट मैनकाइंड इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दिस हार्मोन. यू वुड नॉट बिलीव, एक बार अगर तुमने छोटा सा काम करके किसी को बताया या फिर किसी के साथ शेयर किया और अगर वो तुम्हारी तारीफ करेगा तो तुम्हें पता चलेगा कि कितनी खुशी हो सकती है. यू नीड टू टेल द वर्ल्ड. तुम फेसबुक को हर सारे कामों के लिए यूज करते हो, तुम फेसबुक को टाइम पास के लिए यूज करते हो, बट क्या तुमने फेसबुक पे कभी ये डालने की कोशिश की कि आज तुमने क्या किया या आज तुमने बहुत अच्छा क्या सीखा? अगर तुम वो चीजें डाल देते हो कहीं पे या लिख देते हो या लोगों को बता देते हो और जब लोग उसको लाइक करते हैं या उस पर कमेंट करते हैं तो तुम्हें एक छोटी सी खुशी का एहसास होगा और ये छोटी छोटी खुशियां ही बड़ी खुशियां बन जाती हैं और ये छोटी छोटी जो स्टेप्स आप लेते हो यही एक बड़े स्टेप की तरफ आपको लेके जाते हैं जो आपका अल्टीमेट गोल होता है. तो मुझे नहीं लगता रजत तुम्हें डरना चाहिए या तुम डरते होगे, और अगर स्पेसिफिकली कोई ऐसे रीजंस है जो तुम शेयर नहीं कर सकते अभी यहाँ पे तो जस्ट राइट अस एन ईमेल ऑन आवर ईमेल आईडी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे एंड वील गेट बैक टू यू. वी कैन डिस्कस मोर कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको उस चीज के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता. बट आई थिंक देयर इज नो रीजन, देयर इज नो मिस्टर आर इन दिस केस. यू आर जस्ट प्रिज्यूमिंग दैट देयर इज अ मिस्टर आर. देयर इज नो मिस्टर आर. Any more questions? Okay, Arohi thinks that Facebook wastes a lot of my productive time. पता है आरोही, this is a very common problem which lot of us have. In fact, मैं भी कह सकता हूँ कि Facebook जब मैं कॉलेज के अंदर था तो मेरा बड़ा प्रोडक्टिव टाइम खराब हो जाता था. ऑर्कुट के अंदर हमारे टाइम का ऑर्कुट हुआ करता था, लेकिन फेसबुक और ऑर्कुट तुम सोच भी नहीं सकते कि लोग अपनी, ऐसे भी लोग हैं जो अपनी डेली लिविंग, डेली रूटीन के अंदर बिजनेस करने के लिए फेसबुक यूज करते हैं. मैं अपना एग्जांपल देता हूं. हम लोग जब अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तुमने हमारे वेबिनार का पोस्टर फेसबुक पे देखा, ठीक है? सो हम लोगों ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, जब हम लोगों ने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, हम लोगों ने लोगों से जुड़ने की कोशिश की. हम लोगों ने स्टूडेंट्स के पास पहुंचने के लिए तरीके ढूंढने की कोशिश की. हम लोग बच्चों को मेल करते थे, हम लोग बच्चों को ईमेल करते थे. बच्चे ईमेल पढ़ते नहीं थे. हम बच्चों को फोन करने की कोशिश करते थे. बच्चे फोन पिकअप नहीं करते थे या बच्चे क्लासेस में होते थे या फिर बच्चों को फोन किसी का आना अच्छा नहीं लगता था. फिर हमने एसएमएस करने की कोशिश की. एसएमएस हमेशा बुरे लगते हैं हमें. हमारे पास इतने सारे प्रॉपर्टी वालों के एसएमएस आते हैं आजकल, बल्क एसएमएस, कि एसएमएस देखते हमें लगता है यार किसका एसएमएस आ गया. सो दैट बिकम्स वेरी डेरोगेटरी. सो ना एसएमएस पे हम लोग अपनी चीजों को सही तरह एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते. तो तुम ये बिलीव नहीं कर पाओगे कि फेसबुक हमारे लिए कितना बड़ा असेट है. फेसबुक पे हम लोग तुम जैसे लोगों के साथ जुड़ पाते हैं, हम लोग आरोही जैसे लोगों के साथ जुड़ के अपने व्यूज को शेयर कर पाते हैं और आरोही अपने व्यूज को बाकी लोगों के साथ फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू ही शेयर कर पाती है. लेकिन फेसबुक के साथ एक सबसे बुरी चीज भी है कि फेसबुक पे आप जैसा टाइम चाहो वैसा स्पेंड कर सकते हो. आप कुछ ऐसे ब्लॉग्स को फॉलो करना स्टार्ट करो जैसे मैशेबल हो गया, टेकक्रंच हो गया, कुछ इस टाइप के जो ब्लॉग्स हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो फेसबुक के थ्रू. आप ऐसे ऐसे लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ना स्टार्ट करो या उनको सब्सक्राइब करो जो रेगुलरली बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. और जहां पर आपके इंटरेस्ट हैं, जैसे आरोही तुम्हारा इंटरेस्ट हो सकता है कि यू लव राइटिंग नॉवेल्स और यू लव राइटिंग पोएम्स, तो जो आप अपनी इंटरेस्ट की चीजें हैं उनको फेसबुक पे शेयर करो और जब लोग उसको लाइक करना स्टार्ट करेंगे या जब लोग उस पर कमेंट्स करेंगे तो आपको भी एक सेंस ऑफ सेल्फ अचीवमेंट होगा या आपको भी लगेगा कि हाँ लोग तुम्हारी बातों को गौर से सुनते हैं. तो जो तुम
फालतू का स्टफ कह रही हो जिसमें टाइम वेस्ट होता है, उसको तुम बंद कर सकती हो, उसको सिर्फ टाइम पास के लिए कर सकते हो। बट बाकी जो काम का स्टफ है, तुम्हें लगता है अगर फेसबुक पे टाइम वेस्ट हो रहा है तो तुम उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए वो सब काम कर सकती हो। बट हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हें लिमिट लगाना पड़ेगा कि फेसबुक पे टाइम तुम आधे घंटे से 1 घंटे से ज्यादा स्पेंड कर रही हो, तो एज अ स्टूडेंट you are not doing too much of benefit to yourself. So there are pros and cons of everything that we have around us. So you have to be very tactful in understanding what are the pros and what are the cons. और मुझे लगता है कि तुम जितने, since you are also one of the winners in Learn to Win, I understand that you are one of the very few people who understand कि time की importance क्या है. तो मुझे लगता है कि it's not a very difficult thing for you and you will be able to do it. Any more questions? Chalo, since we are running out of time, I would like to conclude with the one last slide. मैं आज एक बड़ी अच्छी सी वीडियो देख रहा था. Somebody had sent me this video on Facebook only. Facebook पे मुझे किसी ने ये शेयर किया था. ये लिंक आप नोट कर लो. इस वीडियो को 15 मिनट्स का वीडियो है. इस वीडियो को जरूर देखना. You would understand कि हम लोग अपने जिंदगी में मिस्टर आर की वजह से कितना ज्यादा फेल हो जाते हैं. हम लोग हर मोमेंट पे, हर चीज के पीछे एक मिस्टर आर खड़ा कर देते हैं, एक मिस्टर रीजन खड़ा कर देते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, हमारे अंदर करेज कम होता है, हम डरने लग जाते हैं चीजों से और हम लोग अपना टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. सो जस्ट राइट, नोट दिस लिंक समवेयर एंड आई होप दैट इट विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम. 15 मिनट का वीडियो है, यू विल एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो. दिस इज अ वेरी पावरफुल वीडियो दैट आई केम अक्रॉस टुडे ओनली. आई विश टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ यू. एंड मुझे लगता है कि वी आर नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वेबिनार. आई एंजॉयड टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू. मुझे काफी मजा आया तुम लोगों के साथ बात करके. एंड इफ यू रियली want to discuss anything specific with us, Vipul will share with you our email ID and will also tell you कि आप किस तरह से हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं. और इसके पहले अगर आपको हमें प्रॉमिस करना है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो आप यस लिख के जो नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया था, विपुल विल शेयर द सेम नंबर विद यू अगेन. मेरे लिए इतना ही फीडबैक काफी होगा अगर आप खुद को आज प्रॉमिस कर सकते हैं and you can send a yes on that SMS. I'll be more than happy and that would be my feedback for today's webinar. Thank you so much and we'll see you again sometime later. Thank you so much and have a great day. Okay, so now I would like to thank Mr. Prasan Gupta for taking this webinar, and also I would like to thank all the attendees for listening us out. And yeah, a few more things. For anyone else who has any queries, can email us at learn@techbuddy.co.in. You can note down the email ID. It's learn@techbuddy.co.in. Okay. And if you agree to the oath which was given there, then you have to send an SMS which says yes to 98870561000, right? And also the video which was जिसका link अभी was shared with you, that video will be shared from the Facebook page Leap of Learning. So you can search this page on Facebook, like it, and we will be sharing this video from that page. So you can view this video from there. Okay. So with this, I would like to conclude this webinar. So thank you all for attending. Happy learning to all of you.